एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या। एक बार फिर से हम सब एक साथ आप लोगों के साथ मिल करके वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए। यद्यपि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन इसके माध्यम से आज हम लोग फिर से जुड़ पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। We're glad you have joined us for this study in the book of Philippians. We're in chapter 3, looking at verses 4 through 9. But let us look back on our study last week and try to understand if it has helped us at all. और इस प्रकार से हम लोग जो है फिलिपियों के पत्री से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, हम आनंदित हैं और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। We looked at the first few verses of chapter 3 last week, and it begins with rejoice in the Lord. So I was wondering if your past week, the last 7 days, has been a time of rejoicing in the Lord, because we'll find it again in chapter 4 and verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. And so I hope that you've had a wonderful week of rejoicing in the Lord and all of his provision for your salvation. और इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते में जिस प्रकार से हम लोग इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, उस पत्री के अध्ययन के द्वारा, उस पत्री के अध्ययन के दरमियान आप लोगों ने पिछले हफ्ते में, जैसे कि प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, मैं सदा फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों के लिए आनंदमय रहा होगा। And so Paul says in chapter 3 that it's okay to preach the same sermon again and again. And so he reminds the Philippians again of the wonderful blessings that come through the Lord Jesus Christ to everyone that believes the gospel. और और आप इस प्रकार से आश्चर्य करेंगे कि क्या ये सही है कि एक ही संदेश को बार बार दोहराया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हर बार जब हम प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष का कारण ठहरती है। And so verses 2 and 3 set the stage for us to understand exactly what it is that Paul is going to say in the next few verses. And we realize again that God is interested in Christ likeness. And there are a lot of false images of Christ in the life of people who call themselves Christians but have never received Christ into their life. और मेरे प्यारो, ये बात हमारे लिए, जो हमने मसीह यीशु को स्वीकार किया है, एक आशीष का कारण होता है। जितनी बार भी जब भी हम प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, लेकिन यह उनके लिए जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हृदयों में मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए यह बात आनंदित नहीं देती है और ना ही उनको आनंद प्राप्त होता। And we designated chapter 3 as the joy of behaving for Christ. And so each one of us who claim to believe in the Lord Jesus Christ are on stage, as it were, to proclaim the beauty and wisdom of God manifested in the Lord Jesus Christ and shown through our lives, no matter where we live or what we do. और इसलिए जिस प्रकार से हम सब लोग अभी इस प्रकार से यहाँ पर हैं कि 3 अध्याय में, जहाँ पर मसीह के लिए व्यवहार करने का आनंद, सो मसीह यीशु में हम लोग इस बात को जो मसीह यीशु में है उसको प्राप्त करने के द्वारा व्यक्ति मसीही उसके जीवन में मसीह का आनंद को वो अनुभव करते हैं। And so the Apostle Paul reminds us at the beginning of this chapter that joy manifested in the life of the believer is one of the primary characteristics that the Lord Jesus Christ lives in us. और इसलिए मसीह यीशु में जो व्यक्ति आनंदित होता है, वो एक विश्वासी के जीवन का यह सबसे प्राथमिक प्रमाणीकरण होता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह उसके अंदर रहते हैं, इसलिए वो आनंदित होता है और आनंद उसके जीवन से छलकता है। यह उस बात का प्रमाण है। And so, as we realize, the Lord Jesus Christ in the Gospel of John gathered his disciples around him and explained to the disciples what they were going to experience as representatives of him in the world. He refers 7 different times to the word joy. And so the Apostle Paul picks up that thread and shows us the importance of
joy in the life of a true believer. और इसलिए मेरे प्यारों, और जो हम लोग प्रभु के वचन में आते हैं एक विश्वासी के जीवन में, तो पौलुस जो है इस बात को विशेष रूप से रख रहे हैं कि हम में से हर एक जो मसीह यीशु में आते हैं उनके जीवन में मसीह के आनंद का अनुभूति होना बहुत जरूरी है। और वो व्यक्ति, इसीलिए तो लगभग 16 बार इस पत्री में उस विषय के ऊपर, प्रभु में आनंद के विषय में 16 बार वो शब्द आनंद शब्द इस्तेमाल किया गया है। And so, if we expand our search to the whole Bible, we realize that the word joy and rejoicing shows up about 200 times. And so, God considers joy to be a wonderful manifestation of the presence of Christ in us, whether we see it in the Old Testament or in the upper room discourse of John 13 through 17. और इसलिए मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो लगभग 200 बार यह शब्द वाक्य आया हुआ है कि हम लोग मसीह में आनंदित होना, या फिर मसीह का आनंद के विषय में। सो हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में यह बात बार बार दोहराई गई है कि मसीह में हमें आनंदित होना और आनंदित रहना है। यह विश्वासियों के लिए मसीह की ओर से प्राप्त होने वाले उन आशीषों में से एक है। And so the Apostle Paul gives to us the announcement that we are to rejoice in the Lord. But then he goes on in verses 2 and 3 to remind us that there are counterfeits, even in a religious sense, of those who claim to belong to Jesus Christ, but the source of their joy is certainly not the Lord Jesus, but their own success of attempting to imitate the Lord Jesus. और इसलिए प्रेरित पौलुस इस अध्याय में जब हम आते हैं तो विश्वासियों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वो प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि जो मसीह में रह होते हुए मसीह के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, यह बात उनके लिए बड़ी ही आशीष का कारण बन जाती है। और वो लोग मसीह में आकर के उस बात को वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। And so in verses 2 and 3, he reminds us that those who are counterfeit believers or Christians, they have characteristics that are very different than those of us who have the Lord Jesus Christ in us, and we are allowing him to live through us. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में आनंद का अनुभव वही कर पाते हैं जो मसीह यीशु को उनके जीवन में आनंद करने के लिए, या फिर आनंद को महसूस करने के लिए, या फिर उसको संप्रभुता को यीशु मसीह को सौंप देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करें। And so in verse 3, the Apostle Paul ends that verse by saying that people who have a counterfeit Christian life, they have confidence in the flesh. But then he opens verse 4 and reminds that he doesn't have any confidence in the flesh, that he gave that up when he found Christ himself. और इसलिए मेरे प्यारों, पौलुस जो 3 अध्याय को जो है इस प्रकार से वहां पर विवरण देते हैं कि जो मसीह यीशु में वो शारीरिक तौर पर से किस प्रकार से उसमें आनंदित होना है, या फिर उस बात को वो अनुभूति करते हुए हम लोग पाते हैं। Anybody who has confidence in the flesh as a proof of the person of Christ in them will, of course, be counterfeit and not real members of the body of Christ or even of the bride of Christ. But they have chosen other aspects of ideas that are prominent in their life. और इसलिए मेरे प्यारों, जो लोग इस प्रकार से उनके जीवन में अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में जो इस बात के विषय में अनुभव करते हैं कि वो उनके जीवन में शरीर की जो प्रधानता है वो प्रमाणित होती है, और इसीलिए वो जो लोग शरीर के अनुरूप, शरीर के अनुसार चलते हैं, या उनके जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए जो है वो समय जगह देते हैं, तो उनके जीवन में मसीह के आनंद को अनुभव कर पाना उनके लिए मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। Okay, so let's read our text from the third chapter, from verse 4 through verse 9. आइए हम लोग 3 अध्याय का 4 से लेकर के 9 तक फिलिपियों की पत्री हम लोग पढ़ लेते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 4 से लेकर के 9 तक। किसी को भी यदि मिलता है तो पढ़ने में मदद कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 4 से लेकर के 9 तक। पर
मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के लिए यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो सॉरी व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, पर परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, even so, I myself could have confidence in the flesh. If anyone thinks he has confidence in the flesh, I could have been even more. I was crucified, circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, and a Hebrew of Hebrews, with regard to the law, a Pharisee. As for zeal, I persecuted the church. As for righteousness, under the law, I was blameless. But whatever things were a profit for me, I have considered them as loss because of Christ. In fact, now I count all things to be lost because of the surpassing value of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For him I have given up all things, and I consider them rubbish, so that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness from God that is by faith. Thank you very much. What a wonderful passage it is to remind ourselves that the Jewish nation had characters that, like Paul himself and many others, who lived up to the law and they trusted in the law, that didn't bring salvation to them. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर में जो व्यक्ति पहले से ही मसीह में थे, और मसीह में होने के कारण उस व्यक्ति के जीवन में हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उस बात के विषय में वो घमंड करने की बात कहता है। वो व्यक्ति उसमें कहता है कि भैया मैं इनसे भी बढ़कर के उसमें आनंदित हो सकता हूँ। And so the Apostle Paul gives this important responsibility that those who claim to be Christ have only faith in Christ and not in the law or in the flesh or in their own abilities and capacities as well as their accomplishments. Would you please repeat? There was some network low. Okay, I can't repeat. We want to look back to one of the parables that the Lord Jesus Christ gave. It was one of his briefest of parables, and it's called the pearl of great price. और इसलिए हम लोग आइए, अभी हम लोग प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खास तौर से हम उन उन दृष्टांतों को देख सकते हैं। एक दृष्टांत उनमें से जो एक बड़ी कीमत चुकाने के विषय में। And the story that the Lord Jesus Christ taught in just a matter of a few verses reminds us that a merchant man, was in search of good pearls, and that he went to the market in search and found a few nice pearls. But then, of course, he came to one merchant, and there was a pearl of great price, unmatched in its beauty, extremely colorful, and of course, without any flaws. और इसलिए हम लोग देखते हैं एक व्यापारी को जो अपने व्यापार के विषय में, हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से वो उसके विषय में खोज में था, और उसकी खोज में होने के कारण वो मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद हम लोग पाते हैं कि मार्केट में जाने के बाद में वो जाता है बहुत सी जगहों पर, उसने अच्छे व्यापारियों को देखा,
अच्छी अच्छी वस्तुओं को उसने देखा और उनकी कीमत को उसने देखा, लेकिन अंततः वो एक ऐसे व्यापारी के पास पहुंच जाता है कि ऐसे व्यापारी के पास पहुंच जाता है कि वहां पर उसकी जो 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 वस्तुएं थी व्यापार के लिए, वो उनकी सुंदरता को देख करके वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता, उसकी सुंदरता के प्रति वो कायल हो जाता है। And the Lord tells us in this parable that this merchant man came across this one amazingly large pearl of tremendous beauty and color and without flaws. And he went home and he gathered together all of his possession, his savings, his house, all that he had, his pearls, his silver, his gold. And he went back to that merchant and spent all that he had and gave it in so that he could pay the price of this one unique pearl of amazing price. और इसलिए हम देखते हैं उस व्यापारी को, सौदागर को, कि वो जाता है उस मोती की दुकान पर, और उस मोती को, उस मोती की जो सुंदरता है, उसकी चमक इतनी अद्भुत थी, और इसीलिए उस मोती की इतनी चमक अद्भुत होने के कारण ये व्यक्ति उसके पास जाता है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास जो मोती थे उनसे उस उन सब से बढ़कर के इस जो मोती की जो सुंदरता थी वो सबसे बढ़कर के थी। और इसलिए वो इस मोती को क्या, इस चाहता था कि वो इसे प्राप्त करे, इसलिए वो अपना सोना, अपना चांदी, उसका अपना रुपया, अपना सब कुछ वो बेच देता है, और बेचने के बाद में वो उसको खरीदना चाहता है, और खरीदना चाहता है क्योंकि उसकी सुंदरता और उसकी चमक उसको बहुत ही अद्भुत लगी, और इसलिए उसने अपने सब कुछ गवा दिया उसको प्राप्त करने के लिए। And so the Apostle Paul uses that wonderful picture that I have just reviewed with you and says that he himself, as he met the Lord Jesus Christ and understood the beauty and blessing and all of the riches that are found in the Lord Jesus, Paul the Apostle was willing to give up everything that he had learned and that he had loved when he was under Judaism. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रेरित पौलुस यहाँ पर उसी नमूने को यहाँ पर उसी का उदाहरण लेते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वो यहूदियों में से, यहूदियों की व्यवस्था के अंतर्गत था, उनके पंथ में से था, और उसने यहूदियों की सारी जो विद्या है, ज्ञान है, उसने सबको सीखा था। And so the Apostle Paul reminds us that when he met Christ, he found that in the Lord Jesus Christ were riches that were infinite. There were blessings that belonged to him through Christ that did not belong to him through Judaism and through the Hebrew nation. और इसलिए यहूदी पौलुस, प्रेरित पौलुस जो है, इस बात को यहाँ पर जोर देते हुए हम लोग देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यहाँ पर उसको जो आनंद और खुशी और जो आशीष है उसको प्राप्त जो हुई है मसीह यीशु में, वह उसके यहूदी पंथ में होने के द्वारा या फिर बुद्धि और ज्ञानवान होने के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उसकी व्यवस्था के अनुसार धार्मिक जीवन बिताने के द्वारा नहीं हुई है, लेकिन वो मसीह यीशु में होने के कारण उसको वो आनंद, उसको वो आशीषें प्राप्त होती है। And so in verse 4, where the Apostle Paul reminds those who are reading this epistle that there are many, many privileges and blessings that he had through Judaism, and he was going to give up all of those in order that he might have the fullness of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस के उस निर्णय को कि वो प्रेरित पौलुस क्या चाहता है। वो प्रेरित पौलुस यह चाह रहा था कि इस आशीष को होने के कारण वो उसके जीवन में उसके लिए कोई सी भी कीमत को चुकाने के लिए वो तैयार था, और सब कुछ को त्यागने के लिए भी प्रेरित पौलुस तैयार है करके हम लोग पाते हैं। And so the Apostle Paul begins by listing the first thing that was characteristic of him, and that is that he was circumcised the 8th day. And that was a tradition given by God for Abraham and Isaac and Jacob and on all the way down to Saul. And he was fulfilling all of those responsibilities, which began with a circumcision on the 8th day. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस बात की शुरुआत
बड़े ही अद्भुत रीति से प्रारंभ विषय में वो जिक्र करता है कि वो उसके जीवन में उसको जो खतना के विषय में वो कहता है, अगर तुम यहूदियों की बात करते तो मेरा मैं भी उनमें से हूँ, और 8वें दिन मेरा खतना हुआ है करके चर्चा करता है वहां पर। And so the Apostle Paul reminds us that one of the most important aspects of Jewish characteristics was circumcision of the child, the male child, on the eighth day. And it's instructive for us to realize that though for a couple of thousand years nobody understood why the eighth day was the purpose of this circumcision, but they have since learned that God built into the eighth day of a male child a coagulation of the blood to keep the child from dying. और इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रेरित पौलुस वहां पर उस खतने की चर्चा कर रहे हैं, उस खतने की चर्चा जिसके विषय में वचन में वो कहते हुए हैं कि मैं भी मेरा भी खतना उस दिन 8वें दिन हुआ था। और खास तौर से हम खतने के विषय में देखते हैं कि ये वो खतना के विषय में चर्चा की जा रही है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के जीवन में खास तौर से वो यहाँ पर उस उदाहरण को देते हैं जब इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने खतना के द्वारा, अर्थात खतना उसी जो एक बालक होता था, पुरुष होता था, उस बालक को 8वें दिन उसका खतना किया जाना होता था। यह वाचा इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, और उस बात को प्रेरित पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है। And so, as we read through our Bible, we realize again and again that God instituted this for the nation of Israel, and it has spread around the world as a source of good health. But we realize that when Ishmael was 13 years old, he was circumcised. And Abraham, when he was an old man, he was circumcised. And so again, we realize that this circumcision was a sign that these people, these boys, were Jewish. And Paul said, I submitted to this. My parents took charge of that aspect, and I was circumcised on the eighth day according to the law of Moses. और इसलिए यहाँ पर हम लोग ये वचन में जब पढ़ते हैं तो बार बार वचन हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि जो सीधे तौर पर सटीक तरीके से यह बात बाइबल हमें स्पष्ट कराती है कि जो खतने की वाचा है वो यहूदियों के लिए ही दी गई थी। खास तौर से हम लोग जब इस्माइल को देखते, जब वो 13 साल का था तब उसका खतना हुआ। अब्राहम को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी तो अब्राहम बूढ़ा था लेकिन उसका खतना किया गया था। सो इसलिए यहाँ पर इस बात को सत्यापन करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं, मेरे जो माता पिता थे वो यहूदी होने के नाते उनकी जो वाचा का जो परंपरा थी उसका उन्होंने पालन किया, और 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, इसीलिए मैं उस वाचा के अनुसार यहूदियों का हूँ, यहूदी मत का हूँ। ये बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर रखते हैं। And so that characteristic was the first and perhaps one of the most important aspects of the Jewish nation. And then the Apostle Paul goes on in Philippians chapter 5, and he says, secondly, he was the stock of Israel, that is, the nation of Israel. He was born into a family, into a culture, into a climate where Judaism ruled supreme in the lives of people born of और इसलिए Abraham. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो अब्राहम की रीति के अनुसार हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस बात को स्पष्ट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जन्म भी उन्हीं में से हुआ था, उन्हीं के मत में से हुआ था, और इसलिए मैं मजबूत एक यहूदियों में के हूँ, इजरायलियों को मैं के हूँ, और उनमें मेरा जन्म हुआ था। इस बात को प्रेरित पौल स्पष्ट करते हुए वो आगे बढ़ते जाते थे। And so then here the Apostle Paul lists for us an amazing catalog of blessings that belong to him. But this particular one, that he was born a Jew, and that Jewish nature was his because his father and mother were Jewish. And that description places him in a very high position among the nations of the world. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं प्रेरित पौलुस खास तौर से यहूदी मत में होने के कारण, यहूदी मत में होने के कारण प्रेरित पौलुस बात का आनंद को वहां पर प्रकट करते हैं कि मैं भी यहूदियों में से हूं।
मैं भी एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी यहूदी होने के नाते उन्होंने उनकी जो परंपरा थी उसका पालन किया, और पालन करने के कारण वो एक उनके वाचा के अनुसार एक यहूदी उसके माता पिता, इसीलिए वो यहूदी होने के नाते बाकी सारे देशों में से यहूदी जो होना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर उस आशीष के विषय में चर्चा करते हुए हम देखते हैं। And so the Apostle Paul, in his masterful way of writing this book of Philippians, links it up with for us to Romans chapter 9. And in Romans chapter 9, there are 7 or 8 characteristics that Paul claimed as he began to expound what we know as Romans chapter 9. और इसलिए मेरे प्यारों, उसके बाद में हम लोग प्रेरित पौलुस को देखते हैं, जो प्रेरित पौलुस बात के विषय में बड़े ही विस्तारीकरण करते हुए हम लोग देखते हैं। प्रेरित पौलुस उस अध्याय को जो है देखते हैं हम लोग, जो अध्याय 9 रोमियो के पत्र में पाया जाता है। And so Romans chapter 9 begins with the adoption, and he claims, as is true from the Old Testament, that Abraham was not born into Judaism or into Israel. He was adopted out of idolatry and be brought into the person of Jesus Christ through a law system that included circumcision and other blessings of that relationship. और इसलिए हम लोग उस अध्याय रोमियो 9 अध्याय में पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बात के विषय में चर्चा करता है कि यह इसलिए नहीं हुआ अब्राहम को कि वो उसमें जन्म लिया था, वरन उस अब्राहम को परमेश्वर ने उस अब्राहम को उस मूर्ति पूजा के देश से छुड़ा करके, मूर्ति पूजा के वश में से छुड़ा करके उसको लेकर के आया और उसे आशीषों का स्रोत बनाया, आशीषों का मूल पिता ठहराया और उसे आशीषित किया है। सो इसीलिए उसका उसमें रहना, जो व्यभिचार और मूर्ति पूजा का जीवन बिताता था, उसमें से प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्र उसका 9 अध्याय उसी के संदर्भ में अडॉप्शन के विषय में, अर्थात गोद लेने के विषय में हम लोग प्रेरित पौलुस वहां पर प्रारंभ करता है, कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बाहर खींच करके लेकर के आया और तब उसको आशीष दी और उसे आशीषों का मूल पिता ठहराया। हम लोग उस प्रेरित पौलुस को उस पत्र में देख सकते हैं। And so we need to read Romans chapter 9, verses 4 and 5, because the Apostle Paul lists these characteristics of the Jewish nation, because no family, no man on earth, or no nation, no family on earth was blessed as was the people of Israel, the nation of Israel, the family of God known as the Jews were specifically blessed by God in order that Jesus Christ might come from that nation, from that tribe, from that family, and from that person called David. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं वचन रोमियो के पत्र उसका 9 अध्याय उसके 4 और 5वीं आयत को हमको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और उस बात को पढ़ने का उद्देश्य और उस बात के द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं, इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर इस बात की अद्भुत आशीष के विषय में जिक्र किया गया है कि जो अद्भुत आशीष इजरायलियों को मिली थी, उनके अलावा अब्राहम को मिली थी, और उसकी वाचाएं, प्रतिज्ञाएं और वो परमेश्वर की ओर से जो पूर्वज भी उन्हीं के हैं, और किस प्रकार से वो उसमें आशीषित हुए थे, इन बातों के विषय की चर्चा हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पर करते हैं, और कितनी अद्भुत रीति से वे लोग आशीष को प्राप्त किए थे, और उनके जैसे जो लेपालकपन का हक जो उन्हें मिला था, यह कि वो परमेश्वर की वाचा के हकदार हैं, यह कि वो उसी घराने से हैं, यह कि वो दाऊद के घराने से हैं, उसी परमेश्वर के द्वारा इस बात को सत्यापन करने के लिए रोमियो के पत्री उसका 9 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत को हम लोग इस प्रकार से पढ़ते And so we हैं। need to look at each one of these 8 things to realize that the nation of Israel and all of the people. What? Shall I read those verses 4 and 5? Yes, 4 and 5, Romans chapter 9.
का हक, अ, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार हैं। पूर्वज भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन। दे आर Israelites. They have adoption, the glory, the covenants, the gift of the law, the worship of God, and the promises. There's are the ancestors from whom Christ has come with respect to the flesh. He who is God over all, may he be praised forever. Thank you. And so we need to understand the amazing privileges that belong to the nation of Israel. Every man that was born of Jewish parents understood and were told early in life that they were a privileged people, a privileged nation, a privileged family, and a privileged son. और इसलिए हम लोग इस प्रकार से कहा गया है कि वे लोग जो है एक 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 लेपालकपन के एक आशीष पाए हुए और आशीषित हुए एक परिवार है, आशीषित हुआ एक बच्चा, आशीषित हुआ एक 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 कुटुंब है, आशीषित हुआ एक जाति है। हमको यह बात बार बार परमेश्वर की ओर से कहा गया, क्योंकि वे धन्य हैं, वे धन्य हैं जिनको लेपालकपन का हक मिला है, प्रतिज्ञाएं मिली हैं, व्यवस्थाएं मिली है, वाचा, उपहार, महिमा, ये सब मसीह के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। Paul describes himself with his position in the midst of humanity to take away from every other nation and focus on the fact that Abraham was adopted by God out of Ur of the Chaldees, and he became the progenitor of all of the nation of Israel to this day. And anyone born of Jewish parents had that wonderful blessing of living in the light of the adoption that God made for Abraham and, of course, through Sarah. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस वाचा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को सबसे पहले चुनाव किया गया था, और अब्राहम को चुनाव होने के कारण, अब्राहम को अलग किए जाने के कारण हम लोग देखते हैं कि वो उस लेपालकपन का हक सब यहूदी और अब जो भी उसके वंश से आते हैं उन सबको अब्राहम के द्वारा उस लेपालकपन का हक प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुनने के द्वारा सारे यहूदी, आज तक भी वर्तमान में अगर कोई भी व्यक्ति यहूदियों में पैदा होता है, यदि कोई बालक पैदा होता है, तो वो उस वाचा के कारण कि जो जिस वाचा को परमेश्वर ने यहूदियों के संग बांधी थी, उस वाचा के कारण वे उस अब्राहम के साथ बांधी गई परमेश्वर की उस वाचा थी, उस लेपालकपन के वो अधिकारी ठहरते हैं। The second characteristic that Paul refers to in Romans chapter 9 is what he calls the glory. That is a word in reference to the Shekinah glory. And the Shekinah glory was given to Israel as they left Egypt because they had been formed as a nation. And that glory manifested itself in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And it provided guidance for Israel all the way through the wilderness until they came to take up their residence in the land of Canaan. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस अगली दूसरी बात जो इस रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसकी 4th आयत में दी गई है, वो महिमा, उस महिमा जो कहा गया है, वो महिमा उस परमेश्वर की उस सकीना सकीना महिमा, अद्भुत महिमा के विषय में जिक्र किया गया है। और ये वही अद्भुत महिमा है जो इजरायलियों ने परमेश्वर की, उसके जो पूर्वज थे उन्होंने देखी थी, और रात में जो है आग के खंबे के द्वारा, दिन में बादल के खंबे के द्वारा, और उस महिमा को उन्होंने अनुभव किया था। इसीलिए वो दूसरी बात मसीह में होने के कारण उन आशीषों को उन्होंने अनुभव किया है, वो है उसने उनकी उस महिमा को, जो सकीना ग्लोरी अर्थात सकीना महिमा के विषय में जिक्र किया गया है, अद्भुत महिमा को उन्होंने देखा था और उन्होंने उसको अनुभव किया।
And so the Lord gave to Moses the plans for the tabernacle. This was going to be a building in the middle of the big circle of tents where Israel would dwell. And when they moved, they took up the tabernacle and they put it on the shoulders of various men of the tribe of Levi, and they would move. And inside that tabernacle, in the most holy place, was the Shekinah glory, and there was an Ark of the Covenant and a mercy seat there in the holy place, and between the cherubim, which were pounded out of pure gold, God dwelt, Jehovah dwelt, the God of Israel dwelt there, and that was his place, and there was a heavy veil that kept anybody from going into the most holy place where God dwelt. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग परमेश्वर के तंबू के विषय में यदि हम पाए, परमेश्वर के तंबू के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो परमेश्वर के तंबू के विषय में इस्राएलियों के लिए खास निर्देशित किया गया था। तंबू में हम लोग देखते हैं कि वो एक पर्दा बीच में थी, और उस तंबू में पर्दे के पहले जो सामान्य पवित्र स्थान था, जहां पर याजक लोग वहां पर अपने कार्य को, लेवी लोग वहां पर अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को पूरा किया करते थे, और उसके बाद में जो पर्दे के अंदर था वो महापवित्र स्थान था। और उस पवित्र स्थान में जहां पर करूब थे, वहां पर मूसा हारून की जो लाठी थी, और वहां पर जो लिखी हुई पटियाएं थी, और वो वहां पर परमेश्वर के महापवित्र स्थान में उसकी उस महिमा को हम लोग देख सकते हैं, जो परमेश्वर ने निर्देशित किया था। और यदि वो जहां कहीं भी चाया करते थे, खास तौर से वो पर्दा उस लोगों को तो उस परमेश्वर की महिमा में पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उनको रोक देती थी। एक बीच में पर्दा डाल दिया गया था कि वहां पर कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था। और वहां पर जो करूब थे, वो ढाले हुए सोने से बने हुए स्वर्णिम करूबों के बीच में यहोवा परमेश्वर, वो वचन में लिखा हुआ ना, यहोवा परमेश्वर उनके बीच में, मध्य में, उस तंबू में निवास करता था, जिसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं वादा किया था। And so the nation of Israel, at the end of the book of Deuteronomy, the beginning of the book of Joshua, the Shekinah glory moved across the Jordan River into the land of Canaan, and they set up the tabernacle in Samaria, and there the Shekinah glory dwelt in the presence of Israel. No other nation on earth has had the presence of God so spectacularly demonstrated as the glory of the light and the cloud in the tabernacle in Samaria after Israel arrived in the land of Canaan. इसलिए मेरे प्यारों, देखिए, खास विशेष बात को हम लोग देखें कि जब यहोशू के द्वारा इजरायली लोग कनान देश की ओर आ रहे थे, और जैसे ही वो यरदन नदी के पास पहुंचते, यरदन नदी के नजदीक पहुंचने के बाद में हम लोग देखते हैं उस परमेश्वर की उस महिमा को, जो जिसने सारी यरदन के जितना भी पाठ था, वो सारा पाठ जो कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, वो वहां पर अपनी उस महिमा से वो भर देता है। इसलिए इजरायलियों ने जा करके सामरिया में परमेश्वर के तंबू को खड़ा किया। और इस धरती पर ऐसा कोई और राज्य, ऐसा कोई और देश, ऐसा कोई और जाति नहीं है जिसने इतनी प्रकट और रूप से और प्रभावशाली रूप से परमेश्वर ने उसकी महिमा को प्रकट किया हो इस धरती पर। जब इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश करने से पहले उन्होंने उस समरिया में परमेश्वर के उस तंबू को खड़ा किया था, वहां पर अब उस महिमा को उन्होंने अनुभव किया था और प्रकट किया था परमेश्वर ने। कोई इस धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इस प्रकार से देखा हो। In the passage of time, David became king over Israel, and he wanted to build a temple as a dwelling place for this Shekinah glory, for the presence of Jehovah. And God would not let him do that because he was a man of war and not a man of peace. इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं उसके बाद में दाऊद ने भी इस बात का अनुभव किया, और दाऊद ने भी चाहा कि वो भी परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान को तैयार करे, बनाए, ताकि वहां पर उस परमेश्वर की उस महिमा को वो अनुभव कर सके। लेकिन हम देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने दाऊद को यह अनुमति नहीं दी कि वो उसको कार्य को कर पाए, क्योंकि दाऊद एक युद्ध करने वाला, और जिसके घर से तलवार कभी दूर ना हटेगी, युद्धों में फंसा
हुआ व्यक्ति था, ना कि शांति और सांत्वना से भरा हुआ व्यक्ति। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को यह अनुमति नहीं दी। And in the passage of time, Solomon, his son, became king, and Solomon was awarded the responsibility and privilege of building a temple in Jerusalem for the Shekinah glory, for the presence of the Lord, Christ, for the Messiah. And he came to dwell among his people, the nation of Israel, in the temple that Solomon built. And it was a glorious day celebrating the coming of God himself to the nation of Israel in the Holy of Holies of the temple that Solomon built. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग उसके बाद देखते हैं कुछ ही अरसों के बाद में सोलेमन दाऊद का बेटा वो राजा बन जाता है इसराइल पर। और देखते हैं परमेश्वर ने उस सोलेमन को इस्तेमाल किया, और सोलेमन ने उस परमेश्वर के महापवित्र स्थान को और परमेश्वर के तंबू को, जहां पर उस परमेश्वर की सकीना ग्लोरी जहां पर प्रकट हो सके, उस तेजोमय अद्भुत महिमा का दृश्य को जहां पर वो इजरायलियों के बीच में डेरा कर सके, परमेश्वर ने अनुमति दिया कि उसका बेटा उस मंदिर को बनाए। और उस मंदिर को बनाने के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा उस मंदिर में और इजरायलियों के बीच में उसने डेरा किया, और लोगों ने उसकी महिमा को देखा। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को जो उसकी महिमा को निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का मनुष्यों के बीच में निवास स्थान होने के लिए, एक तंबू को, एक मंदिर को बनाने के लिए उसको अनुमति दिया और उसे इस्तेमाल किया। And with the passage of time, we know that Israel went into captivity or went into idolatry, and they went their own way and chose not to follow God. And the nation was divided between the northern kingdom and the southern kingdom, and idolatry and immorality came in. And Ezekiel tells us that the glory of God left the temple in Jerusalem and was ultimately destroyed. And then there was nothing of the presence of God known, because God himself had departed from the nation of Israel, from the tabernacle and from the temple and from the most holy place, and left Israel as an abandoned nation. और इसलिए मेरे प्यारो, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब लोगों जब स्थापित हो जाते हैं, स्थापित होने के बाद में लोग जब बढ़ने लगते हैं, हम देखते हैं इस बात को कि वो लोग किस प्रकार से, कितनी रूप से परमेश्वर के विरोध में उस जीवित पवित्र और सामर्थ्यशाली परमेश्वर के विरोध में इजरायलियों ने गलत काम किया। इजरायलियों ने मूर्ति पूजा किया, इस्राएलियों ने व्यभिचार किया, और इसी के परमेश्वर उनके बीच, महिमा अब उनके बीच में नहीं, महापवित्र स्थान जहां पर वो अब जाती रही, क्योंकि यह कारण उनकी अविश्वास, अंधकार और जिद्दीपना और साथ ही साथ व्यभिचार के कारण जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके इस कार्यों के द्वारा इजरायलियों को एक त्यागा हुआ, एक 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 छुटकारा हुआ अनाथ देश के तौर पर उनको त्याग करके छोड़ दिया, क्योंकि उनके गुनाह और पापों के कारण। As time passed again, Herod built a temple in Jerusalem, and that temple was destroyed by Titus. And the coming of the Lord Jesus Christ into our world through incarnation as the God-man was the initial restoration of the presence of God among Israel, until he, of course, ascended, having died and been raised from the grave. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में मंदिर को जो है हेरोद के द्वारा बनाया गया, तीतुस के द्वारा उसको फिर से त्रस्त किया गया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, और यीशु मसीह के आगमन और साथ ही साथ यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के द्वारा स्वर्ग में उठाए जाने तक हम देखते हैं उस महिमा को परमेश्वर ने इस प्रकार से उन पर बनाए रखा।
And so in verse 4 of Romans chapter 9, Paul reminds the Romans that the blessing of adoption was theirs, and then the glory, the Shekinah glory. And then the third thing he says is the covenants. And there are a number of covenants that God made with the nation of Israel, not with any other nation, but it was specifically to the nation of Israel, and placed them in a place of love, affection, and blessing such as no other nation has experienced in the history of man. और उसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इजरायलियों को जो लेपालकपन का हक उनको दिया था, महिमा उनको साथ थी, उन आशीषों को उन्होंने त्याग दिया। लेकिन साथ ही साथ मेरे प्यारों, उस परमेश्वर ने वचन रोमियो के पत्र उसका 9 अध्याय 4 आयत में पढ़ते हैं, तीसरी बात, महिमा ही नहीं वरन वाचाएं भी उनको, जो परमेश्वर ने उनके साथ उनके पुरखाओं से पूर्वजों से बांधी थी, वो हक के द्वारा वो सारी वाचाएं उनके साथ बांधी गई थी। And so we read through the Old Testament, and again we come in Genesis chapter 12, the reminder of a covenant that was made with Abraham. It was ratified by Isaac and Jacob, but then there was a second covenant, a marvelous covenant given by God to David, and that will be fulfilled when Israel goes back to the land. It's called the Palestinian covenant. And then from there we read about the covenant of Jeremiah chapter 31, the new covenant, and it says in Hebrews chapter 8 and 9 to remind ourselves of the new covenant that God is going to make and is making with the nation of Israel. And you and I are living in these amazing days where the first rumblings and noise of that covenant are going to be fulfilled for the nation of Israel in a day to come. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद में फलिस्तीनियों के लिए की गई वाचा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब हम यिर्मयाह 31 अध्याय में आते हैं, वहां पर एक नई वाचा के विषय में परमेश्वर इस्राएलियों से बांध रहा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें उन आशीषों के विषय में अवगत कराते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। और यह बात मैं और आप आज जीवित हैं, और परमेश्वर इजरायलियों के देश के साथ में किस प्रकार से उस वाचा का सत्यापन कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, और उसकी चर्चा को, उसकी आवाज को चारों तरफ गूंजते हुए हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस प्रकार से परमेश्वर के उन वाचाओं को बांधने का जो हम लोग गवाह बनना, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जो आज परमेश्वर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसे पूरा करेंगे। And so these four covenants made with Abraham and with David and with what we call the Palestinian covenant and the new covenant. Then the Apostle Paul in Romans chapter 9 and verse 4 says, the giving of the law, the wonderful provision that God made, giving them commandments for every area of their life, 613 commandments, not just the 10 commandments inscribed in stone, but the 613 commandments, which covers the civil law, the religious law, and the moral law, which guides Israel in every area of their life. और इसलिए मेरे प्यारों, हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो ना केवल जो लेपालकपन का हक था वो परमेश्वर की महिमा के साथ था, उनकी वाचाओं के साथ था, जो उसने दाऊद के साथ बांधी, फलिस्तीनियों के साथ बांधी, नई वाचा बांधी, यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने एक नई वाचा को जो पूरा किया है। वो मेरे प्यारों इतना ही नहीं, वरन वो रोमियो के पत्री उसका 9 अध्याय उसकी 4 आयत में जो 4 बात है, व्यवस्था का उपहार, इतनी अद्भुत बात उपहार के रूप में उनको व्यवस्था मिली है जो इस बात का सत्यापन करते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से, वो केवल इतना नहीं कि वो 10 आज्ञाएं हों, वरन वो व्यवस्था का उपहार जो 613 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने इजरायलियों को, उनके देश को, उनके साथ उनको पालन करने के लिए उनके साथ बात हुआ था परमेश्वर से।
And so the giving of the law is recorded for us through the Ten Commandments in Exodus chapter 20. And then the rest of Exodus and Leviticus and Numbers and Deuteronomy, it is the revelation of the other 603 commands that God gave to guard Israel, to guide them, and to protect them from the enemies around them. और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन व्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं तो हमको निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं के विषय में हमको विवरण मिलता है। लेकिन बाकी जो 603 जो क्षमा आज्ञाएं हैं, वो 603 जो आज्ञाएं हैं, वो आज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक रहस्यमय तरीके से प्रकाशन के तौर पर रखा है। जब वो हर दिन हर पल किस प्रकार से वो चलते हैं, उनका पालन करने के लिए उनको वो बाध्य किया गया था। और 613 आगे पूरा बाइबल में पूरा नियम को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि बाइबल के आधार इजरायलियों को, यहूदियों को मिली हुई जो आज्ञाएं हैं वो केवल 10 नहीं है, केवल हमको 10 उसमें बताया गया, लेकिन बाकी हम सब आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी वो कुल मिलाकर के 613 आज्ञाएं होती हैं। The next ingredient that was uniquely belonging to the nation of Israel was what Paul calls the service of God. And by using the word service of God, he is referring to the priestly exercise of those priests that were responsible for the tabernacle, for the sacrifices, for the offering, for the teaching of the law, and many other aspects of bringing the truth of God out of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, and bringing that to the nation of Israel. And they taught the people, and they provided that wonderful bond between God in glory through the Shekinah glory in the tabernacle and man, all those that were born of Abraham, Isaac, and Jacob. और उसके बाद में जब हम आते हैं रोमियो को पत्र उसका 9 अध्याय उसकी 4th आयत में, हम देखते हैं कि जो 5वीं बात 4th आयत में लिखी हुई है, परमेश्वर की उपासना। परमेश्वर की उपासना यह परमेश्वर की आराधना के संबंधित है, और यह परमेश्वर की आराधना के संबंधित उन यहूदियों के बीच में लेवीय गोत्र के उन याजकों से है जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था, और उनको सारे देश में इजराइल के परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करना, उसकी आराधना करना, उसके लिए बलिदान चढ़ाना इत्यादि कामों के विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है कि परमेश्वर ने उनको उनकी उपासना करने के लिए उन्हें ठहराया है कि वे उसके गुण गा करके, उसको स्मरण करके उसकी महिमा करें, उसको आराधना करें। And so as we look through again the Old Testament, we realize that Levi was the tribe that was chosen by God to provide the service of the tabernacle. And Levi had 3 sons, the Merathites, the Kohathites, and the Girgashites. And each one of them had responsibilities regarding the teaching of the law, regarding the sacrifices, regarding letting the nation of Israel know the wonderful privileges that God had given them because they were born of Abraham, Isaac, and Jacob. और इसलिए क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब से पैदा हुए लेवियों के जो 3 पुत्र थे, जो गत्तीवासी थे और गिरगीवासी थे, उनको ये परमेश्वर ने उनके लिए विशेष रूप से वाचा करने, पालन करने के लिए उनको ठहराया था कि वे उन परमेश्वर के वो ठहराए हुए कार्य को, उनकी जो वाचाएं थी, उनकी जो आराधना करने के लिए वो बाध्य थे, क्योंकि वो उनके लिए परमेश्वर की व्यवस्था का उनको मालूम था, पता था, और ज्ञान होने के नाते परमेश्वर उनसे यही चाहते थे कि वो उसको, उन आज्ञाओं का पालन करें। And so we remind ourselves again that God continues to uphold his covenants and his promises. And Paul then refers in Romans chapter 9 in verse 4, and he says the service of God, which would be the priestly service, and then the promises, and the promises that were given to Abraham, to Isaac, and to Jacob, the promises that the Lord was going to bless the nation of Israel. He would bless those that bless them. He would curse those that curse them. And every nation of the earth would be blessed through the nation of Israel. And those promises are still waiting to be fulfilled. Largely they have been fulfilled through the Lord Jesus Christ, who was born of the tribe of Judah and who could not in any way be a priest
but he was a priest after the order of Melchizedek and served the priestly responsibility as the book of Hebrews describes for us. और इसलिए मेरे प्यारों, उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस उस बात को स्मरण करता है कि ना केवल वो परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना करने के लिए ही नियुक्त किए गए थे, वरन उन परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञाएं भी, जो प्रभु के जो प्रोमिसेस थे, प्रतिज्ञाएं थी, वो भी उन्हीं को दी गई थी। और उनकी परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में बांधी थी, वो उनके साथ में उनके जो बाकी के जो ग्रुप हैं, बाकी के जो समूह है, उनके द्वारा और परमेश्वर ने सत्यापन किया है। बाकी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उस वाचा का सत्यापन इस्राएलियों के साथ किया है। और ना केवल हम देखते हैं कि वो यहूदा के गोत्र से ही, वरन हम लोग देखते हैं कि वो महायाजक के रूप में मलकी सदिक के रीति पर वो सदा के लिए महायाजक के रूप में वो ठहराया गया। इसलिए परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की ओर से उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वे भी उन्हीं को प्राप्त होती हैं। And then the Apostle Paul opens verse 5 by saying another characteristic that belongs exclusively to the nation of Israel are the fathers. And he, of course, is referring to Abraham, Isaac, and Jacob. And Jacob had 12 sons, and those 12 sons became the 12 tribes of Israel. And God in the future, even in the book of Revelation, reminds us of the 144,000 witnesses, and they will come 12,000 from each tribe. And so God is going to honor those who are descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and they belong only to the nation of Israel. No other nation can claim divine appointment. Even our friends among Islam who try to claim Abraham through Ishmael, they are not of the promise. They are not of the blessings. They are not of the fathers. And we await again the coming of the Lord Jesus Christ to the earth to establish his kingdom, because he is the tribe of Judah. और मेरे प्यारों, इसलिए हम लोग देखते हैं वचन 5 में जब हम आते हैं, जब वचन 5 में हम आते हैं, तो वचन 5 में हम लोग रोमियो के पत्र में एक और बात प्रेरित पौलुस वहां पर उजागर करते हुए कहता है कि पूर्वज भी उन्हीं के हैं। इशारा कर रहा है अब्राहम, इसहाक और याकूब। और याकूब, अब्राहम जो परमेश्वर ने चुना था, और उसके साथ में अब्राहम ने याकूब के जो 12 पुत्र थे, और 12 पुत्र उसके साथ में हम जब आते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में 144 प्राचीनों के विषय में जो कहा गया है, और वो प्राचीनों के विषय में जो 12,000 एक गोत्र से निकल करके आते हैं, इस्राएल के 12 गोत्र हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने, वो पूर्वज जो हैं, वो इजरायलियों के ही हैं। यद्यपि आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो इस्लाम देश हैं, इस्लाम के लोग हैं, वो अब्राहम के, इस्माइल के जो वंशज हैं, वे आज भी इन बात प्रतिज्ञाओं के, इन पुरखाओं का दावा करते हैं कि वे उन्हीं के हैं। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा वे लोग, इस्माइल जो है, वो वाचा का पुत्र के द्वारा नहीं, वरन वो एक दासी के पुत्र के द्वारा वो पैदा हुआ था। इसीलिए वो इस बात के चलते उन आशीषों के भागीदार नहीं हैं, उन पूर्वजों के हकदार वो नहीं हैं। लेकिन हम देखेंगे अंततः प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, तो वो इजरायलियों के साथ, इजरायलियों के देश के लिए आएगा, क्योंकि वो यहूदिया के गोत्र से है, और यहूदिया का वो शेर, यहूदा का वो राजा आने वाला है, उस सिंहासन पर बैठने वाला है। And so the last ingredient of this amazing collection of qualifications arranged by God through the nation of Israel is the coming of the Lord Jesus Christ. He was born of a virgin, and it's described for us in the genealogy of Matthew and Luke, and makes it clear that only Jesus Christ, who is of Abraham and Isaac and Jacob and Joseph and Judah, provides all of the necessary ingredients for the Savior of the world. And we need to celebrate that, as Paul is asking us to do in the rest of that verse. God over all, Jesus Christ, our Savior and the Messiah of the nation of Israel. Amen.
आमेन आमेन। और इसलिए मेरे प्यारों, उसके बाद जो आखिरी बात है प्रेरित पौलुस यहाँ पर 5वीं आयत में, रोमियो के पत्री 9 का 5 में वो कहता है, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। और इस बात को देखें, अद्भुत रीति से प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाते हैं कि वो मसीहा भी उन्हीं के बीच में से शारीरिक रूप से कुंवारी मरियम के द्वारा वो पैदा हुआ, और उन्हीं के लिए वो आया, और उसने जो मसीह जो उनके लिए मारा गया और भाव से उन्हीं में से हुआ, और साथ ही साथ वो उनके लिए फिर दोबारा आने वाला है। इसीलिए वो परमेश्वर जो सबके ऊपर है, परम धन्य परमेश्वर है, वो युगान युग धन्य है। आमीन। Amen. What a आमीन। wonderful exposition the Apostle Paul gives us in Romans chapter 9. And so this will end our time to here. But please read through Romans chapter 9, these verses, and salivate the wonderful blessings that belong exclusively to the nation of Israel. And we as a church join in that celebration and in that blessing that God has given to the nation of Israel. और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है आज का समय खत्म होता है। प्रभु आपसे अनुरोध है कि कृपया करके रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय को आप लोग दया करके उस पर मनन करें, विचार करें, और उसको ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उन आशीषों के विषय में आपको अनुभव हो जाएगा, और प्रभु आपको उनके द्वारा बहुत आशीष देगा। So read again Philippians chapter 3, particularly looking at verses 4 through 9. Then go back to Romans chapter 9 and verses 4, again 4 through 9. You'll find an amazing connection with God Himself put together by the Holy Spirit in what we call the Scriptures. और इसलिए मेरे प्यारो, आपसे गुजारिश है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय को आप पढ़िए, और साथ ही साथ 3 अध्याय को पढ़ने के साथ साथ आप जाइए रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 4 से लेकर के आप 4 और 5वीं आयत को पढ़िएगा, और आपको वो अद्भुत बातें जो अनुभव होंगी, वो बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई, उन आशीषों को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा। Thank you very much, and I hope that you marinate your mind and contemplate these amazing things that are brought together because of what we have in Romans and what we have in Philippians chapter 3. और इसलिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मेरी उम्मीद यह है कि आप इन आशीषों के ऊपर अपना मन को लगाएंगे और उसमें मनन करेंगे, और इन अद्भुत आशीषों को, इन अद्भुत तथ्यों को, इन अद्भुत बातों को आप अपने जीवन में उनको सीधे तौर पर लागू करेंगे और उन पर परिचालन करेंगे। इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक We are यू। grateful to God that there are the people of Israel. They belong to God. God belongs to them. And the church also is related to the Lord Jesus Christ. He is our Savior. He is our Lord. He belongs to us and we belong to Him. आमेन। और इसलिए मेरे प्यारो, ये बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के ग्रुप से इजरायलियों के लिए आया, लेकिन इजरायलियों के लिए वो उनसे जुड़ा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और कलीसिया भी यीशु मसीह के देह होने के द्वारा वो भी परमेश्वर से जुड़ी हुई है, और हम कलीसिया के नाते, अलग अलग अंग होने के नाते, हम भी मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, और मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये अद्भुत जो नजारा है वो हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। ये अद्भुत बात है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। Thank you.